into that today, and we will start with that. So let's see. So what I will do, just I will quickly try to solve all these things. I mean, of course, you have answered well. I also checked your answer sheet. So congratulations to all of you. You performed well. Are you able to see the screen now? दिख रहा है screen? Yes, sir. तो चलो शुरू करते हैं आज मिड सेम के क्वेश्चन पेपर से. So this was the paper. So the first question was about defining the concepts, system, mathematical modeling, open loop control system. So quite interestingly, I mean all of you have answered, and I also see a bit of different answers was in a different perspective, but it is fine. But mathematical modeling, few of you missed some solidity in the answers. I mean, mathematical modeling from name itself, it says it's about modeling of the system from mathematical equations. So it has two things: mathematics, and modeling. So when you try to model your system, I mean real-time system, with the help of mathematical equations and mathematical relations. So that is essentially a mathematical modeling. So if you write mathematical modeling is a process of modeling in mathematics. So it's like a bit different, but yeah. And about the system, yeah. So let's start from the first. So can somebody tell me again what is the system? So let's hear from all of you. So what's the system? Anyone? System which provide desired response by controlling output, sir. Desired response by controlling the output. Amit, yeah. So anyone else would like to add to Amit's answer? Very good, Jim. So now you see, we got two very interesting and different answers. But yeah, it goes with the system. So essentially, it's a combination of interacting elements by which you give some input, and in response to that, system reacts. So it's essentially an interconnecting element, combination of interconnecting elements for which, if you apply some input, it gives you the response. And how about mathematical modeling? Mathematical modeling, I already said, it's about modeling the system, real-time system, with the help of mathematical relations or equations. And how do you define the open loop system? Open loop control system. Output is obtained from Output is, I mean, your system uh, sorry about the bad network. Okay, तो ये पीडीएफ दिख रहा है ना सबको? Can you see the screen?
No, sir. ओके, मैं शेयर करता हूँ फिर से। Sorry about the bad network. Actually, I don't know. Somehow it is getting crashed. Okay. क्या बोल रहे हो? मैं कहाँ से हूँ? यू आर आस्किंग अबाउट माय नेटिव प्लेस। अभी अभी मैं अपने घर पे हूँ। एक्चुअली टिल 18 वी आर इंस्ट्रक्टेड टू वर्क फ्रॉम होम, तो घर से ही कर रहा हूँ, अहमदाबाद। ठीक है, तो लेट्स सी। आई थिंक वी कैन स्टिल मैनेज, इट्स नॉट टू बैड। तो ओपन लूप का वही है कि इसका फीडबैक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं रहता है, एंड योर आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, like your input is independent of output. Okay. So, and the second question Amit had asked, like how to solve this one. So let's see. I mean, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें चेंज करना था। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव अटेम्प्टेड, बट मेनी ऑफ यू हैव आल्सो मेड अ मिस्टेक इन दैट। तो देखो इसमें क्या कर सकते थे हम लोग। लेट मी सी इफ वी कैन राइट ऑन दैट। ये वाला जो एलिमेंट है ना, इसका जो मेन स्टेप है वो मैं बताता हूँ कि कहाँ पे ये जो है। ओके, so let me try here. स्लाइड दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके, तो चलो मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ। पीडीएफ गिविंग सम इशू। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से। यहाँ से आ रहा है। जी,
Please tell me if I miss. तो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये जो एक स्टेप है हम लोग को चेक करना है, वो है ये वाला समिंग पॉइंट को इसके लेफ्ट में लेके जाना है। उसके बाद क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी फीडबैक पाथ में है। इसको सॉल्व करके हम एक एलिमेंट बना सकते हैं इसका, और उसके बाद G3 और ये जो हो जाएगा वो सीरीज में हो जाएगा। तो व्हेन यू टेक दिस टू दिस साइड, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं सिर्फ इसको बना के दिखाता हूँ। ये जो G5 का एलिमेंट है वो इधर आ जाएगा H2 के साथ, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, और ये जो शिफ्टिंग है इसके वजह से क्या होगा कि G5 यहाँ पे आएगा फिर। तो ये कॉमन होना चाहिए इसमें भी। अगर मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, इसको शिफ्ट किया, तो इसका मतलब इतना अमाउंट इधर से भी शिफ्ट होना चाहिए। ऑलरेडी तुम्हारा G2 है यहाँ पे। ये अभी देखो कि ये वाला और यहाँ पे एक और है, वो कॉमन हो जा रहा है समिंग पॉइंट, जो कि G1 से अटैच करता है, ये वाला। Make it clear like this. ये और G2 मेरा ये, राइट। और देखो इसको ये सॉल्व कर लो, इसको ये तुम्हारा G3 है, तो G3 and this will become G4 by 1 plus G4 times H1। सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा। तो अभी ये सीरीज में हो गया, इसको सॉल्व कर लेना इजी है, इसको सॉल्व करना इजी है। अभी ये दो समिंग पॉइंट को फिर से हम अलग कर सकते हैं। ये देखो नेगेटिव वाला टर्म है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला जो नीचे का टर्म है इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं फिर से G2 और माइनस G5। फिर ये जो टर्म है G1, इसको ऐसे रहने दो यहाँ पे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। तो अभी ये इसका जो सिग्नल है वो यहाँ पे रह जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये जो भी यहाँ पे टर्म है G4 टाइम्स H1, ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा अभी G2 टाइम्स, सॉरी G5 टाइम्स H2। तो अब बताओ क्या करना है। ये दोनों पैरेलल में हो गया, ये और ये फीडबैक पाथ में है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा। तो इसको इसका जो एक सिंगल ब्लॉक बनेगा वो ऐसा बनेगा, G1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा G2 टाइम्स G5, G2 टाइम्स G5। उसके बाद ये ओवरऑल ब्लॉक बनेगा दिस बाय दिस टाइम्स दिस। तो इसका सॉल्व कर लोगे, ये फीडबैक एलिमेंट है, यहाँ पे आ जाएगा ये, सॉरी। तो उसके बाद क्या होगा कि one second, red। तो अमित, इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. Yes. ओके, तो ये वाला सॉल्व करके बहुत इजी है, ये फीडबैक पाथ है इसका, यूनिटी फीडबैक, तो ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, इसका ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो फिर जो भी ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक बन जाएगा, दैट शुड बी योर आंसर। सो दैट वाज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वैसे बनेगा, तो ट्रिक इसका यहाँ पे था। I was very happy to see that almost all of you have answered. This is not big, this is big, big overshoot. तो सबका आंसर ऑलमोस्ट सही है, सबका सही है। And how PID controller changes the overall system performance, explained by choosing any relevant system transfer function। यहाँ पे क्या है ना कि कई सारे लोगों ने, तुम लोगों में से, they have taken the transfer function of PID controller।
तो पीआईडी कंट्रोलर का तो एक अपना फीचर है विच इज एसेंशियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ पी प्लस आई प्लस डी। मतलब क्या हुआ, प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर का ये कॉम्बिनेशन है पीआईडी कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल के अपने एडवांटेज हैं, इंटीग्रल के खुद के एडवांटेज हैं, और डेरिवेटिव के खुद के एडवांटेज हैं। प्रोपोर्शनल क्या करता है, गेन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। So we can control the gain with the help of proportional, and of course definition also says that it is proportional to error। एंड आई क्या करता है कि हमें पता है सिस्टम में दो तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। यहाँ तक का जो रिस्पॉन्स है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट, और इसके बाद का जो है वो है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो ट्रांजिएंट स्टेट को जनरली इम्प्रूव करते हैं हम डी से, डेरिवेटिव से, और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करते हैं जनरली हम आई से। तो डी अलोन वी कैन नॉट यूज, वी यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ पी डी, और आई को भी हम यूज करते हैं पी आई कंट्रोलर की तरह। बट व्हेन वी यूज ऑल थ्री टुगेदर विच इज एसेंशियली पी आई डी कंट्रोलर, तो ये क्या करता है कि ये तीनों चीज को टैकल करता है, गेन को, स्टेडी स्टेट को और ट्रांजिएंट स्टेट को। हाउ पीआईडी कंट्रोलर चेंजेस द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी सिस्टम का ले लो, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये ट्रांसफर फंक्शन किसी होता है, स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम को होता है। सेकंड ऑर्डर मैंने लिया, यू कैन टेक फर्स्ट ऑर्डर आल्सो, 1 by 1 plus tau s कुछ करके, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर। तो कोई भी रिलेवेंट एग्जांपल लेने का मतलब ये था कि यू टेक एनी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। ये तो इसका हो गया ट्रांसफर फंक्शन। अभी इसमें हम क्या कर रहे थे, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे चेक करते हैं। देखो कंट्रोल का जो स्ट्रक्चर होता है ना कंट्रोल सिस्टम का, वो ऐसा होता है। Can we insert pen here? Yeah. So देखो यहाँ पे चैन कर रहा है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे बनाते हैं इसको। तो ये एक ब्लॉक है कंट्रोलर का ना, इसको मान लो किसी बोल देते हैं, और इसको बोलते हैं प्लांट का प्लांट। अभी क्या हो रहा है कि प्लांट पी का जो फीडबैक है वो आ रहा है, यहाँ पे है आर और यहाँ पर है सी। इनपुट आउटपुट प्लांट और कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक एलिमेंट भी हम डाल सकते हैं इसमें, आई मीन सेंसर का, तो एस बोलते हैं। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का, सीएलसीएस, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। ये कंट्रोल एलिमेंट है, प्लांट है, और ये सेंसर है। सेंसर कुछ भी हो सकता है, मतलब इसका you can also put a small gain here, there is no problem. So whatever sensor transfer function is, we can put it here, or we can replace it with one, which is essentially a unity gain. तो देखो क्या हो रहा है कि ये जो प्लांट है ना, प्लांट कैन बी योर स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम, या आरएलसी सर्किट, या हीटिंग सिस्टम, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, रेलवे सिस्टम हो सकता है, कुछ भी, whatever it comes in your mind, it is that. And if you can correlate with your assignment number one, I was also checking your assignment number one earlier. Then I found almost all of you have answered correctly. I think all of you. So ये जो प्लांट है ना वही है फर्स्ट ऑर्डर का, जो तुम लोगों ने मैथमेटिकल मॉडलिंग किया है, उसको अगर हम ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म में लिखेंगे, एसेंशियली वी शुड राइट इन ट्रांसफर फंक्शन फॉर्म और इन एस फॉर्म। तो ये प्लांट हो गया। अभी इसका जो ये है ना कंट्रोलर, वो ऐसे डिफाइन होता है उसका। तो हमने देखा था कि सी टी इक्वल्स टू था के पी टाइम्स ई टी प्लस के डी टाइम्स, सॉरी, डी ऑफ ई टी बाई डी टी प्लस के आई टाइम्स इंटीग्रल ऑफ ई टी डी टी। ये था, ये आई है, डी है, और ये पी है। तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको सिंपली यू कैन राइट ई एस के वन एस टाइम्स ई एस, ये के आई बाय वन बाय एस। तो ये इसका ट्रांसफर निकल गया कंट्रोल सिस्टम का। मेनी ऑफ यू हैव रिटन ओनली द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल system, but I said
explain it by choosing any relevant transfer function. तो कोई relevant transfer function ले लो सिस्टम का, सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन। तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन में ये कैसे ऑर्गुमेंट होता है? तो द आइडिया वाज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन वाज कि ऑलरेडी सपोज पहले मेरे पास कंट्रोलर नहीं था, यू कैन ऑपरेट अ मशीन विथ और विदाउट कंट्रोल सिस्टम। जैसे हम कार की बात करते हैं तो कार को हम मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी ड्राइव कर सकते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होता है आरसी फ्लाइंग, उसको हम रिमोट कंट्रोल से भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। और एक ऑटोमेटिक होता है जिसमें इवन दो वी डोंट यूज ट्रांसमीटर रिसीवर वी कैन स्टिल फ्लाई द एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल। Hello. सो आई एम रियली सॉरी वंस अगेन वी मिस द कनेक्शन। तो लास्ट हम लोग क्या देख रहे थे? कैन यू प्लीज टेल मी सो दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। PID controllers. ओके, तो पीआईडी कंट्रोलर वाला हमें क्या देख रहे थे? तो अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा Yes, sir. है? Yes. ओके, परफेक्ट। तो प्लीज बेयर विथ मी अबाउट दिस ग्लिचेस टुडे। तो आइडिया वही था, जैसे मैंने बोला कि ये जो कंट्रोलर हम चूज करते हैं ना, देखो कंट्रोलर इसमें क्या है कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास के पी, के आई एंड के डी रहते हैं। के आई एंड के डी, देखो ये तीन जो हमारे पास ट्यूनिंग पैरामीटर्स है ना, इस तीन ट्यूनिंग पैरामीटर की हेल्प से वी कैन ऑल्टर द सिस्टम्स ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्योंकि पहले प्लांट का ये जो सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन था, एक्चुअली इसको सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। प्लांट का जो ट्रांसफर फंक्शन था, इट माइट हैव सम सॉर्ट ऑफ शॉर्टकमिंग in terms of stability or in terms of performance, but we are trying to overcome those instability and performance issues with the help of the control structure। और इस कंट्रोल स्ट्रक्चर में मैंने बताया कि केपी, के आई और के डी जो है ये ट्यूनिंग पैरामीटर्स हैं। By selecting the right kind of tuning parameters, you can choose your control structure, PID control structure। और ये क्या होता है कि सिस्टम में फाइनली ऑगमेंट हो जाएगा। तो ये जो प्लांट है इट कैन बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम। By solving the assignment number 1,
You also have explored the multiple facets of the system, because second order and first order is mathematically they are first and second order, but in reality or in practice you have systems which fall under the category of first order and second order generally. तो वो सिस्टम हो सकता है कि आरएलसी सर्किट हो सकता है, स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम हो सकता है, हीटिंग सिस्टम हो सकता है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो सकता है. इट कैन आल्सो कम फ्रॉम सम ऑफ द यूनिट्स ऑफ एयरक्राफ्ट और कार. तो ये है. तो सिस्टम को जब हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया और इसको ऑगमेंट किया कंट्रोल सिस्टम के साथ, तो it is now affecting the overall system performance, and I was expecting your answer in that direction, but I mean your attempt was good. 5, I think I don't need to explain question number 5 because none of you made any mistake in that. All of you solved it accurately, to my knowledge, what I can remember recollect now. So it's quite easy, and you can say now this is an unstable system with two roots or poles. Actually, roots and poles are interchangeably used. Two roots are at right half of S plane RHP. तो कोई और डाउट है क्वेश्चन को लेके मिड सेम के, और एनीथिंग एल्स वुड लाइक टू आस्क रिगार्डिंग योर मिड सेमेस्टर एग्जाम? No, sir. ओके गुड. तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लास्ट टाइम में हमने किया था स्टार्ट सर फ्रीक्वेंसी. हाँ एक सेकंड. या प्लीज टेल मी. सर मार्क्स आप मेल Marks, yeah, I'm planning to email to all of you. I was checking this MIS. I could not see the option of entering the individual marks हाँ there. सर सब मेल मेल से भेज दो ना सबको इंडिविजुअल करके. यस सर. Okay, that will be perfect. So I will also send you your answer sheet because I have corrected on that. So कोई feedback, or if you think your marks is less और ज़्यादा किसी का आ गया तो वो भी बोल सकते हो. You can see that, yeah. ओके So it's a good idea. I'll just send you all of you your email ID. I think सबने Google Doc पे submit किया है. So I would also request all of you. I think जिन लोगों ने assignment mail के through send किया उनका email ID है मेरे पास. And I'm planning to send it individually. तो क्या होगा कि सभी अपना अपना answer sheet दे सकते हैं. So I'll not send you through group email. So I'll try to send through your email ID. So please remind me your email ID if I miss some of yours, because whom they have sent individual emails to me for their mid semester, I know their email ID individually, or I'll just check it actually how it can be done. So you will receive your answers soon. Okay. तो चलते हैं अभी. तो थोड़ा सा फिर से ब्रश अप करते हैं हम जो लास्ट क्लास में हमने किया था, एंड देन वी विल गो डायरेक्टली टू द कोडिंग प्लॉट. So what is the frequency response analysis? So from the last understanding, it's a bit different actually. ये usual नहीं है frequency domain में analysis करना, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो tools बने हुए हैं control system के लिए और any other even for mathematical modeling, we are used to work in time domain. So that's why we need to put little more attention to this topic.
Sorry once again. I think this is a frequent problem today. So uh, let's see. Otherwise, we can continue in the next class. तो देखते हैं इस बार I'm trying to sort this issue out. Maybe we'll see tomorrow will be better. Slide. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना अभी? Yes. Okay. So yes, so I would like to ask you now. So कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिलेशन कैसे होता है और कल नहीं इन आवर लास्ट क्लास तो कैन somebody tell me what's your current understanding about the frequency domain now? मतलब हम चाह रहे हैं कि स्लोली जाए और we should try to grasp this concept rather than going fast because already we have covered so many units. So just tell me frequency now. I mean, we talked last time about the gambles. अभी का जो understanding है, I would like to know in the context why still we are going for frequency domain. We have a very great tools or so many tools available in time domain. Why do we want frequency domain? Last time you have given me some examples of frequency domain. So now, can you please tell me why do we need frequency domain analysis? What are the advantage over time domain, frequency domain? So yes, please. सर टाइम डोमेन में ऑल ओवर टाइम के रिस्पेक्ट में होता है और फ्रीक्वेंसी में हर एक फ्रीक्वेंसी में सिग्नल कितना चेंज होता है वो होता है. वेरी गुड. सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करते हैं, राइट? तो क्या इसका एडवांटेज क्या है? व्हाई डू वी डू दैट? सर हर एक फ्रीक्वेंसी में आउटपुट का मतलब. तो साइनसोइडल सिग्नल एक है, प्योर साइनसोइडल है, ए साइन ओमेगा टी, तो उसमें कितने फ्रीक्वेंसी होंगे? So your answer is good, Nikhil. So just I was asking that एक साइनोसॉइडल सिग्नल होता है ना, प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल, लेट्स से द इक्वेशन इज ए साइन ओमेगा टी, तो उसमें कितना फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा? सेम फ्रीक्वेंसी होगा सर. ओनली वन, राइट? देखो अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एक्चुअली, इसलिए मैं इसको रिपीट करना चाह रहा था कि जस्ट टू चेक व्हेन माय मैसेज हैज गॉन टू यू और नॉट. सो कोशिश करते हैं अभी. देखो ये साइनोसॉइडल सिग्नल है ऐसे करके, and let's say it is y, this is t, and your y equals to a sin omega t. Perhaps these are at the same amplitude a. तो ये है. अभी now tell me what is the frequency of this particular equation. equation and very popularly in physics we use as wave, sinusoidal wave. So mathematically we can say still it's an equation actually, or it can be model of anything. It can be model of cantilever also, which is constantly vibrating. Cantilever में कैसा होता है, ऐसे हुआ, इसको मैंने हैमर से फोर्स लगाया इस पे यहाँ पे, अब ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है ऐसे करके. दिस इज रियल टाइम, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन. तो इसमें कितना फ्रीक्वेंसी है? And I also want to know what is omega, what is A, and what is T. दिख रहा है ये स्लाइड सबको? यस सर. So yes, Nikhil. So please tell me. Your answer is good, okay. But I also want a bit elaborated understanding. तो चलो ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. So don't worry about it actually.
देखो ये जो इतना सारा जो चीज हम करते हैं टाइम डोमेन में ना, तो दिस इज एनालिसिस ऑफ द टाइम डोमेन। इसको इसका जो इक्विवेलेंट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका जो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो ऐसा है, इसको एम्पलीट्यूड मान लो और ये है फ्रीक्वेंसी। एज निखिल सेड, टाइम डोमेन में हम क्या करते हैं कि किसी भी सिग्नल का एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में किसी भी सिग्नल का एनालिसिस विथ रेस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी करते हैं। तो ये साइनसोइडल क्या होता है ना, प्योर साइनसोइडल सिग्नल जो होता है वो होता है ए साइन ओमेगा टी, इस तरह का कुछ होगा, और इट कैन आल्सो बी ए कॉस ओमेगा टी। ये जो ओमेगा है दैट इज इन प्रैक्टिस और in terms of physics also, many times since we are student of engineering, mechanical engineering especially, we have heard about the term vibration or angular frequency. So ये है angular frequency। और linear frequency क्या होता है, इससे related है, वो हम देखेंगे, इसको amplitude बोलते हैं। और of course this is time। amplitude का मतलब क्या हुआ कि इसका जो peak value है ना वेव का और सिग्नल का, that is your amplitude। ये जो peak value है दैट इज योर ए, ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ए है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज योर 2 पाई एफ, एफ इज योर लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्या होता है, एफ इज इक्वल टू योर 1 बाय टाइम। 1/2. राइट। देखो ये जो टाइम पीरियड है, ये यहाँ से इसका रिपीट हो रहा है, यहाँ से टाइम पीरियड का यहाँ तक होगा, ये 1 बाय टी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी एसेंशियली इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है कि इट इज ए टाइम फ्रॉम विच योर साइकिल अगेन स्टार्ट्स। तो इसका जो रिपीटिंग साइकिल है वो यहाँ तक, इसके बाद से फिर से ये पैटर्न स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके। और एम्पलीट्यूड में क्या होता है कि ये अभी जो इसका हमने एनालिसिस किया वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, मान लो कि इसका फ्रीक्वेंसी एफ था इक्वल्स टू 1 बाय टी, ये इसी फ्रीक्वेंसी पे एक लाइन जनरेट करेगा और एक सिग्नल इम्पल्स की तरह आएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस वेव। अभी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क, तो ये काम कौन करता है, हु टेक्स मी फ्रॉम हियर टू हियर। ये मैंने सबसे फंडामेंटल जो एग्जांपल है वो लिया है साइनसॉइडल वेव का, टाइम डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ऑलवेज रिमेंबर, इसको अगर हम समझ गए तो वी कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग, टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन के केस। ये एक प्योर साइनसॉइडल सिग्नल है एंड वी आर यूज्ड टू सी दिस काइंड ऑफ वेव्स इन आवर राइट फ्रॉम आवर हाई स्कूल मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी हमने देखा। वेव को भी कई बार हम इसको इस तरह के सिग्नल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी द क्वेश्चन इज हु कन्वर्ट्स फ्रॉम हियर टू हियर, इसका मैथमेटिकल टूल क्या है। So the question now from all of you is, from which tool we can convert time domain to frequency domain। उस टूल का नाम क्या है जो टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। Yes, Dhruvel. Dhruvel, I think your voice is quite low. Can you please repeat? Laplace transformation। Okay, so Dhruvel said Laplace transformation से हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। एनीवन वुड लाइक टू ऐड टू ध्रुविल्स आंसर। तो ठीक है, हम उसमें ऐड करते हैं, ध्रुविल के आंसर में ऐड करते हैं। तो एज ध्रुविल सेड लाप्लास डोमेन इज एसेंशियली एस डोमेन, और एस डोमेन जो होता है वो भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टूल व्हिच कन्वर्ट फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे इसमें क्या होता है कि f of t is getting converted to f of s and that is known as Laplace conversion। वेरी गुड। और ये जो s होता है ना, ये होता है s equals to j ओमेगा, बट स्टिल इट्स मैथमेटिकली रिगोरस और
इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होता है। एस मतलब एस जो है वो कैसे रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से, वो ऐसा है एस इक्वल्स टू जे ओमेगा। बट मोस्ट frequently used tool which also has contribution towards real time system design, सबने देखा होगा, that is also called spectrometer or in data acquisition system that we have a something like signal analyzer। तो इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल होता है ना उसको ये टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में करता है, एंड दैट इज नोन एज योर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। So the idea of Fourier transformation is to change from time domain to frequency domain, right? तो हमने ये सीखा कि टाइम डोमेन देखो कितना क्लमजी है। इट हैज, if you want to draw a signal in time domain, you have to take this many effort. It will go till infinity. Frequency domain में सीधा सा एक सिग्नल हमने जनरेट किया at that particular frequency, and that is a representation of frequency domain। तो देखो कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये जो इंटरेस्टिंग सा रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी डोमेन टेल्स यू ओनली अबाउट द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इन द सिग्नल। टाइम डोमेन में क्या होता है, वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पे कैसा बिहेवियर है, 10 सेकंड पे कैसा बिहेवियर है। बट हियर यू डोंट नीड दैट because you know it's already a periodic signal or it's a signal which has a frequency component। तो दोनों के ही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। जैसे इसमें क्या हो रहा है कि हम इसके टाइम हिस्ट्री को प्लॉट करते थे, वी एग्जैक्टली नो दैट वेयर अगर यहाँ पे कुछ फेल्योर है या कुछ तरह का इशू है, वी एग्जैक्टली गेट टू नो दैट एट व्हाट टाइम देयर इज अ फेल्योर, एट व्हाट टाइम सिस्टम इज हैज सम लीकेज और सम इशू। यहाँ पे कोई अब्रप्ट चेंजेस आया तो वी कैन कमेंट, और हमारा जो विजुअलाइजेशन होता है वो टाइम डोमेन में ज़्यादा इंट्यूटिव होता है बिकॉज वी आर यूज्ड टू रिलेट थिंग्स विद द टाइम। यहाँ पे ये है, इसका सिंप्लिसिटी इस तरह से काम करता है जैसे तुमने एक सेंसर खरीदा और सेंसर का पर्टिकुलर बैंडविड्थ है। अब सबसे पहले मुझे जानना है कि मेरा जो सिस्टम है उसका बैंडविड्थ कितना है, उसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन यूजफुल है। अभी जैसे मान लो इसका टाइम डोमेन में है तो वी फील दैट इट्स क्वाइट इजी टू फाइंड द टाइम पीरियड और उसका इन्वर्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी निकल गया। बट आई एम आस्किंग नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, ऐसे करके तुम लोगों ने ऐसे भी सिग्नल देखा होगा, इसको बोलते हैं नॉइजी सिग्नल, ऐसे करके ऐसे भी आता है। अब देखो कि इसमें साइनोसॉइडल, एक प्योर साइनोसॉइडल तो है लेकिन इसमें और भी मिक्सिंग है इसमें, ये भी मिक्सिंग है। तो ये सिग्नल मिक्स होकर और ये सिग्नल मिक्स होकर ये बना है, ये वाला बनेगा। तो जैसे ही हम इसका फूरियर एनालिसिस करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म से, तो इसका जो ये वाला जो चीज है, लेट्स ड्रॉ इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो फिर कमिंग टू द बेसिक, इसका तुमने बता दिया कि ये है, सॉरी जीरो मिस, ये इन्फिनिटी नहीं है, ये है इक्विवेलेंट। अभी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया जिसमें नॉइज था ऐड, दैट कैन आल्सो बी अ sinusoidal wave but it's a corrupted wave and it has noise। ये कैसे बनता है इसको भी देख लो, ये दिस प्लस इससे बना, ये नॉइज एंटर करता है, ये आउटपुट के थ्रू आ सकता है, इनपुट के थ्रू आ सकता है, डिस्टरबेंस हो सकता है, सिस्टम में आ सकता है, तो ऐसा हो। अब इसका अगर हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करना है तो एक जो इसका साइनोसॉइडल के रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी है वो तो जनरेट होगा ही। अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होंगे, नॉइज जो होता है वो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे इसके स्पाइक्स जनरेट होंगे ऐसे करके। तो देखना कि कभी भी इफ यू गेट अ चांस टू डू द सिग्नल एनालिसिस, यू हैव मल्टीपल टूल्स इन द इंटरनेट। सिग्नल एनालिसिस करना इस तरह के सिग्नल का, देन योर रिस्पांस इन फ्रीक्वेंसी विल बी लाइक दिस, फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये टाइम डोमेन है। तो इसके लिए जो डिवाइस है वो है एफएफटी। तो कई सारे जो स्पेक्ट्रोमीटर है या फ्रीक्वेंसी मेजरिंग डिवाइस है, दे यूज एसेंशियली स्पेक्ट्रोमीटर टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन दैट। अब जैसे ही तुमने यहाँ पे ये देख लिया, sorry,
जैसे तुमने फ्रीक्वेंसी के ये सारे ग्लिचेस देख लिए एट हाई रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो you can comment now that this is a corrupted signal and higher frequency suggests that it has a noise. The noise always enters at higher frequency. Noise. उसका of course low magnitude होगा. So don't worry, we will stop after this actually. So let's wait on Wednesday. Okay. तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है दैट इज एसेंशियली नॉइज. तो जैसे मैंने बताया कैंटिलीवर पे मैंने एक सेंसर माउंट किया, उसको हैमर से मैंने स्ट्राइक किया यहाँ पे, तो इसका वेव ऐसे कुछ होगा. तो यार sensor will be able to pick up those signal ऐसे. लेकिन ये अगर नॉइज है, नॉइज इसमें एंटर कैसे करेगा? अगर कैंटिलीवर का या इस बीम का खुद का कोई इंटरनल फ्लटरिंग है इसके मटेरियल को लेके, तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके आएगा. इफ यू वांट टू क्वांटिफाई दैट फ्रीक्वेंसी और फ्लटरिंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्लटरिंग हो रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे करके, और एक हो रहा है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में. तो ये जब इससे मिक्स होगा तो ये प्योर साइनसॉइडल टाइप का जनरेट नहीं होगा. अभी तुम्हें इसका पता करना है कि इसका फ्लटरिंग क्या है, तो you will get this kind of spikes. ये सजेस्ट करता है कि इसका फ्लटरिंग फ्रीक्वेंसी है. So you have to ensure that the kind of sensor you are using here that is still operational in this frequency range. तो ये फ्रीक्वेंसी का रेंज हमें पता चल गया, तो we can suggest the kind of sensor which will be useful for that. एयरक्राफ्ट का जो विंग होता है ऐसे मान लो कि ये विंग पे, यहाँ पे अगर हम कोई सेंसर माउंट करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो एयरक्राफ्ट का इस डायरेक्शन में जो फ्लटरिंग है विंग का, वो इसको कैप्चर करना चाहिए. मतलब इस सेंसर में उसके इंटरफेरेंस नहीं आने चाहिए, तो हम वहाँ सजेस्ट करते हैं इस तरह के. तो दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी डोमेन पर्टिकुलरली इन सच केसेस जहाँ पे नॉइज एंटर कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है सिग्नल में विच इज नॉट विजिबल हियर. अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या फ्रीक्वेंसी किस तरह से वो ऐड कर रहा है, फ्लटरिंग है कि कोई और एक्सटर्नल नॉइज है. तो क्वांटिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन विच इज नॉट पॉसिबल फॉर टाइम डोमेन. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन और टाइम डोमेन का ये चीज़ है एक्चुअली. अभी हम अपने कंट्रोल सिस्टम के रेस्पेक्ट में इसको कल बात करते हैं. आई थिंक वी हैव quite disturbing internet connection today. तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क, else we will meet on Wednesday with new topic Bode plot. Because Bode plot क्या है कि जैसे in time domain we have tools like Raw Service and root locus to do the analysis of control system or overall system. In frequency domain we have a graphical tool known as Bode plot, Nicholas plot, Nyquist plot, polar plot. Several plots are there, several tools are there.
but initially we will focus on body plot and perhaps we also look for polar plot. तो किसी को डाउट है आज के कॉन्सेप्ट्स को लेके या if you want to add something to it? No, sir. Okay, so we will meet on Wednesday, perhaps with better internet connectivity. I'll see that.